Let us see the next question. Prepare Nostro account and exchange position with following information. State Bank of India has opening credit balance of $1 lakh with Bank of America and overbought position of $1 lakh. And we have been provided with few transactions. A Limited has imported goods from a US company. It is required to pay $25,000 spot to its supplier. A Limited wants to remit $25,000 to its supplier through TT, that is telegraphic transfer. B Limited has imported goods from a US company. It is required to pay $7,000 after 3 months. It has entered into a forward contract to hedge its foreign exchange risk. B Limited wants to remit $7,000 to its supplier in forward contract through telegraphic transfer. And so on हमको आगे का इंफॉर्मेशन दे रखा है और इसके बेसिस से हमको प्रिपेयर करना है नॉस्ट्रो अकाउंट और हमको एक्सचेंज पोजीशन प्रिपेयर करना है. आई वांट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द क्वेश्चन, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करेंगे. तो सबसे पहले नॉस्ट्रो अकाउंट का एक थोड़ा सा थियरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आगे वर्किंग समझते हैं. बेसिकली वी अंडरस्टैंड दैट से कि इंडिया में वी हैव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वी हैव बैंक ऑफ अमेरिका. देयर इज अ कंपनी इन इंडिया, लेट अस से XYZ, और उन्होंने गुड्स इंपोर्ट किया है from a company called Johnson Incorporation. For the import of the goods, XYZ is required to make the payment of $10,000. ये $10,000 का पेमेंट करने के लिए XYZ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अप्रोच किया. $10,000 के इक्वलेंट रुपीस XYZ पे करने को तैयार है. XYZ ने इतना पेमेंट किया. फॉर एग्जाम्पल द एक्सचेंज रेट इज 80. So 80 into 10,000, that comes to $8 lakhs. I'm sorry, 8 lakhs rupees. उन्होंने 8 लाख रुपए दिए और XYZ क्या बोलेगा, मेरे सप्लायर का बैंक अकाउंट डिटेल्स ये है, आप उनके अकाउंट में $10,000 जमा कीजिए. तो इंडिया का, दैट इज इंडिया में जो बैंक है, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनका एक अकाउंट होता है बैंक ऑफ अमेरिका में. तो वो लोग बैंक ऑफ अमेरिका के उनके अकाउंट से ये $10,000 जॉनसन इनकॉर्पोरेशन के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 8 लाख रुपए ले लिए किससे, XYZ कंपनी से, और उसके सामने वो क्या करेंगे, $10,000 का पेमेंट करेंगे. किसको, लाइक जॉनसन इनकॉर्पोरेशन को. ये $10,000 का जो पेमेंट होगा वो उनके नॉस्ट्रो अकाउंट से होगा. Nostro account is basically a kind of simple bank account that you have. It is a kind of the bank account which is maintained by an Indian bank in US in dollar currency. उसको Nostro account कहा जाता है. So let us read now the information or kind of explanation which they have provided to us. Nostro, उसके बाद Vostro and Loro भी है, वो क्या, वो अभी हम लोग थोड़ी देर में समझते. इन इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस foreign exchange is transferred from one account to another and from one center to another center. Therefore, the banks maintain 3 current accounts in order to facilitate the quick transfer of the funds
in different currencies. These accounts are one nostro, यानी हमारा अकाउंट उनके बैंक में, vostro यानी वो लोग जो हमारा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, that is called vostro, and third is loro, meaning ours, yours and their. देखो कई बार क्या होता है कि जो छोटा छोटा बैंक है, वो छोटा छोटा बैंक अपना खुद का फॉरेन करेंसी का अकाउंट रख सकते नहीं है। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट रखा हुआ है, पर कोई एक छोटा सा कोऑपरेटिव बैंक है, दैट कोऑपरेटिव बैंक मे नॉट हैव इट्स इंडिपेंडेंट अकाउंट इन बैंक ऑफ अमेरिका। तो उस केस में ऐसी बैंक्स क्या करती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो नॉस्ट्रो अकाउंट है उसका यूज करती है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द फंड्स, उसको लॉरो अकाउंट कहा जाता है। These accounts are nostro, vostro and loro, meaning are, your and their. A bank's foreign currency account maintained by a bank in foreign currency, in foreign country, and in that home currency of that country is known as the nostro account. So this is important. A bank's foreign currency account, in State Bank of India का डॉलर करेंसी में अकाउंट, maintained by the bank in foreign country, यानी maintained by the State Bank of India in United States of America in the home currency of that country is known as the nostro account or our account with you. That is what it says. For example, an Indian bank's Swiss account with Bank of Switzerland. Vostro account is the account which is held by foreign bank, यानी बैंक ऑफ अमेरिका जो हमारा अकाउंट रखती है उसको vostro अकाउंट कहा जाता है। Vostro account is the account which is held by a foreign bank with a local bank. So if the Citibank maintains an account with State Bank of India, it will be vostro account for State Bank of India. The account which is nostro for one bank is vostro for another. That is what we understand. When domestic banks use the account of third party, जैसे मैंने बोला आपको कि कोई छोटा बैंक है कि जिसका खुद का nostro account नहीं है, when a domestic bank uses the account of the third party bank which holds nostro account to settle foreign exchange transaction, these types of the transactions are included under the loro account. Example, HDFC Bank has an account with Citibank, but IDBI Bank does not have any nostro account with Citibank. IDBI has to pay the bill of imported machinery from USA on behalf of its customer. IDBI Bank approaches to HDFC Bank, यानी IDBI ने HDFC को अप्रोच किया, asking HDFC to settle the invoice on its behalf, कि आप हमारे behalf पे ये ट्रांजैक्शन करके दीजिए। HDFC Bank worked as an intermediary between the Citibank, यानी वहां का बैंक, and IDBI Bank. Next is exchange position. देखो अभी क्या होता है कई बार फ्रेंड्स कि जो नॉस्ट्रो अकाउंट है वो अकाउंट कैसा हुआ, एक हमारा लाइक एक्चुअल अकाउंट हुआ जिसमें जो भी फंड्स आया, जो भी फंड्स गया, उन सब का रिकॉर्डिंग होगा किसमें, नॉस्ट्रो अकाउंट में। अभी नॉस्ट्रो अकाउंट में क्या होगा कि सारे के सारे स्पॉट ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे, एट द सेम टाइम से कुछ और भी ट्रांजैक्शंस आएंगे, कौन सा वो अभी हम लोग समझते हैं। और दूसरा होता है एक्सचेंज पोजीशन। एक्सचेंज पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि सपोज कि हमने हमारे कस्टमर के बिहाफ पे, हम कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमने हमारे कस्टमर के बिहाफ पे एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी कि हम लोग फॉरवर्ड में क्या करने वाले हैं, डॉलर करेंसी परचेज करने वाले, डॉलर करेंसी सेल करने वाले, तो उसका इफेक्ट नॉस्ट्रो अकाउंट में भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि अभी वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने का बाकी है, पर वो यहाँ पे एक्सचेंज पोजीशन में आ जाएगा। एक्सचेंज पोजीशन को क्या बताता है कि क्या हम लोग बाय करने वाले हैं और क्या हम लोग सेल करने वाले हैं। इट इज रिफर्ड टू टोटल परचेस और टोटल सेल कमिटमेंट ऑफ द बैंक टू परचेस और सेल फॉरेन एक्सचेंज whether actual delivery has taken place or not। यानी इसका मतलब क्या कि अभी उसका ट्रांजैक्शन हुआ है या तो फॉर फ्यूचर में होने वाला है।
In other words, all transactions for which the bank has agreed with the counterparty are entered into the exchange position on the date of the contract. That is what we understand is the exchange position. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको दो चीज बनाना है. एक तो हमको बनाना है नॉस्ट्रो अकाउंट, दूसरा हमको बनाने का है एक्सचेंज पोजीशन. Nostro account is a kind of simple account that say we maintain with our bank. That is what we understand is the Nostro account. Yani State Bank of India is preparing this. That's say what kind of the balance that say it would have in its Bank of America. तो यहाँ पे क्या होगा? Particulars, column number 1, debit column number 2, क्रेडिट कॉलम नंबर 3. यहां पे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस हमको क्वेश्चन में दे रखा है $1,00,000. इट हैज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ $1,00,000 एंड ओवरबॉट पोजीशन. तो एक्सचेंज पोजीशन में क्या होगा फ्रेंड्स? अगेन कॉलम नंबर 1 इज पर्टिकुलर्स, column number 2 is purchase, column number 3 is sale. एग्जामिनेशन में सिर्फ इतना ही करने का है. Now I am preparing one more a small table जिसमें I am just going to explain कि कौन सा ट्रांजैक्शन होता है. So explanation. उस पर मैं लिख रहा हूं सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, उसमें कस्टमर क्या करेगा वो लिखेंगे और हम लोग क्या करेंगे वो लिखेंगे. हम लोग का मतलब कि बैंक. दैट इज द वे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर फोकस करता हूं, फिर हम लोग ऊपर का दो कर लेंगे. A Limited has imported goods. Okay. And it is required to pay $25,000 spot to its supplier. तो देखो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? फर्स्ट ट्रांजैक्शन मैं लिख रहा हूं इंपोर्ट, उस पर मैं लिख रहा हूं स्पॉट. कस्टमर कौन सा ट्रांजैक्शन करेगा? इट इज सेल ऑफ रुपीज एंड परचेस ऑफ डॉलर. यानी बैंक कौन सा ट्रांजैक्शन करेगा? बैंक करेगा सेल ऑफ डॉलर एंड परचेस ऑफ रुपीज. दूसरा है बी लिमिटेड हैज अगेन इंपोर्टेड गुड्स. इट इज रिक्वायर्ड टू पे $7,000 आफ्टर 3 months. इट इज एंटरिंग इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉपी पेस्ट ही हुआ. सेकेंड, इंपोर्ट स्पॉट में सेल रुपीज, सॉरी इंपोर्ट उसमें फॉरवर्ड, और वहां पे रिवर्स हो जाएगा सेल ऑफ डॉलर एंड परचेस ऑफ रुपीज. और ये ट्रांजैक्शन होगा फॉरवर्ड में. सी लिमिटेड has exported goods to a US company. It is going to receive $5,000 spot from its customer. तो क्या होगा यहां पे? सी लिमिटेड ने एक्सपोर्ट किया है और उनको स्पॉट में कंसिडरेशन मिलने वाला है. तो कस्टमर क्या करेगा? सेल डॉलर एंड परचेस रुपीज. हम लोग क्या करेंगे? सेल रुपीज एंड परचेस. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, अगेन डी लिमिटेड हैज एक्सपोर्टेड गुड्स एंड इट इज गोइंग टू रिसीव $10,000. कब? 3 महीने के बाद. इट इज एंटरिंग इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट.
तो चौथा, सेमी होगा, एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन ही है। द ओनली थिंग इज दैट से यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पॉट की जगह ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन हो रहा है फॉरवर्ड में, ऐसा दे रखा है, तो सिर्फ यहीं पे चेंज आएगा। सो हियर इट इज फॉरवर्ड। Otherwise, entire transaction is same. Fifth transaction. A student from India wants to go to study in United States of America. The US college is accepting the payment in dollar currency via DD, demand draft. The student requests for the demand draft of $2,000 issued by the bank. स्टूडेंट को वहां पे जाना है, तो उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट केम टू अस, उसने बोला कि हमको डीडी बना के दो। यहाँ पे स्टूडेंट डीडी, स्टूडेंट क्या बोलेगा, ये लो रुपए और मुझे आप डीडी बना के दो। हमने बोला ठीक है, तो हमने क्या किया, वी हैव एंटर्ड इनटू द ट्रांजैक्शन फॉर सेल डॉलर एंड परचेज रुपीस। क्योंकि उन्होंने क्या किया होगा, रुपीस दिया होगा और उन्होंने क्या बोला होगा कि हमको $2,000 का डीडी बना के दो, तो हमने ट्रांजैक्शन क्या किया होगा, सेल डॉलर परचेज रुपीस। E Limited exported goods and for that it is receiving bills receivable of $8,000. E Limited ने गुड्स बेचा, साथ साथ में बिल भेजा, उनको बिल्स वापस मिला, तो उनके लिए वो बिल्स रिसीवेबल हो गया। ड्यू डेट ऑफ द बिल इज 3 months. दिस बिल इज डिस्काउंटेड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी E Limited ने वो बिल बैंक को दिया और बैंक को बोला कि मेरे को इक्विवेलेंट रुपीस अभी दे दो, फिर जब बिल मैच्योर होगा तब आप वहां से पैसे ले लेना। तो 6th ट्रांजैक्शन इज बिल डिस्काउंटिंग, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटिंग। कस्टमर ने क्या किया, सेल डॉलर परचेज रुपीस, क्योंकि कस्टमर ने क्या बोल दिया, डेट से ये बिल लो, आप मुझे रुपीस अभी दे दो डिस्काउंट काट के। तो हमारे लिए क्या हो गया, सेल ऑफ रुपीस एंड परचेस ऑफ डॉलर। नेक्स्ट, डी लिमिटेड इज कैंसलिंग द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो डी लिमिटेड का ये ट्रांजैक्शन था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था ना वो कैंसिल कर दिया। कोई बात नहीं, कैंसिलेशन में क्या करेंगे, वी विल एंटर इनटू द रिवर्स ट्रांजैक्शन। Cancellation of original forward contract. ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं एक्सपोर्ट। तो इनिशियली जो कस्टमर ने ट्रांजैक्शन किया होगा वो उन्होंने कैंसिल किया, ये तो ये कैंसिलेशन का क्या होगा, रिवर्स, सेल रुपीस एंड परचेस डॉलर, और हमको भी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, इट इज सेल ऑफ डॉलर एंड परचेस ऑफ रुपीस। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स वांट्स टू कैंसिल द डिमांड ड्राफ्ट। कोई बात नहीं, कैंसिलेशन ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, उसके पास डॉलर करेंसी का है तो रिवर्स करेगा वो, सेल डॉलर परचेस रुपीस। या तो हम लोग इसका भी ले सकते हैं, परचेस डॉलर था उसकी जगह सेल डॉलर, सेल रुपीस था उसकी जगह परचेस रुपीस, और यहां पे क्या हो जाएगा, सेल रुपीस एंड परचेस डॉलर, ऐसा। Bank wants to keep credit balance of 85,000
एंड बैंक वांट्स टू कीप ओवरबॉट पोजीशन ऑफ 1 लाख, तो इन दोनों को पेंडिंग रखते हैं। इसका मतलब क्या, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमने ये ट्रांजैक्शन समझ ली है। लेट्स से दीज आर द ट्रांजैक्शंस इन विच कस्टमर एंटर्स अपॉन एंड वी विल एंटर अपॉन। now देखो, ये जो स्पॉट ट्रांजैक्शन है ना, उसका इफेक्ट दोनों जगह पे आएगा। वन इज इन द नॉस्ट्रो अकाउंट एंड अनदर इज इन द एक्सचेंज पोजीशन। फॉरवर्ड का इफेक्ट सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन में आएगा। नॉस्ट्रो में कब आएगा फ्रेंड्स, जब वो जो भी टाइम पीरियड एक्सपायर होगा ना, उस दिन आएगा। स्पॉट दोनों जगह पे, नॉस्ट्रो प्लस एक्सपोर्ट सॉरी प्लस एक्सचेंज पोजीशन। फॉरवर्ड का इफेक्ट सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन में आएगा। स्टूडेंट को नीडी बना के दिया हमने, तो वो कॉलेज में एडमिशन लेगा, फिर जो कॉलेज है उसमें डिमांड ड्राफ्ट वो जमा करेगा, फिर वो जो बैंक होगा वो हमारी बैंक को डीडी प्रेजेंट करेगा, तब डीडी क्लियर होगा। यानी अभी ये जो डीडी निकाला ना, उसका इफेक्ट आएगा सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन में। बिल डिस्काउंट करके दिया है, बिल मैच्योर होगा, फिर हम वो जो सामने वाला जो अपोजिट पार्टी है उसके पास जाएंगे और हमको तभी डॉलर मिलेगा। अभी तो इसका इफेक्ट सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन में होगा। कैंसलेशन ऑफ ओरिजिनल फॉरवर्ड, इसका ऑफ कोर्स एक्सचेंज पोजीशन में ही। क्यों? क्योंकि इनिशियली जब ट्रांजैक्शन हुआ था तभी हमने क्या लिखा था, तभी हमने सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन में ही लिखा था, इसलिए इसका इफेक्ट सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन। डीडी का कैंसलेशन सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन। तभी 1 बाय 1 ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट लिखते हैं। इंपोर्ट जिसके लिए पेमेंट करने का है, जिसका इफेक्ट दोनों जगह पे आएगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं रेमिटेंस बाय टेलीग्राफिक ट्रांसफर 25,000। और हमने क्या किया है, सेल डॉलर, तो यहां पे हम लोग ऐसा लिखेंगे $25,000 क्योंकि हमने क्या किया है, हमने सेल डॉलर किया है। फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन में आएगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट in that $7,000 ऐसा करके इसका इफेक्ट दोनों जगह पे आएगा। एक्सपोर्ट किया है, कंसिडरेशन मिलेगा, यानी हमारे कस्टमर ने गुड्स बेचा है, हमारा कस्टमर उनके कस्टमर को क्या बोलेगा, दैट से भाई ये अकाउंट डिटेल्स है हमारा, वो बैंक ऑफ अमेरिका का कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज द अकाउंट डिटेल्स, वहां पे आप डॉलर जमा करवा दो, तो वी विल गेट डॉलर, यानी परचेस। रिसीप्ट इट इज 5,000। और इमीडिएट मिलेगा $5,000 का क्रेडिट।
फिर स्टूडेंट का बात किया है, जिसको हमने क्या किया है, सॉरी, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट किया, उसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा, सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन में, परचेस ऑफ डॉलर। तो 8,000 का बिल डिस्काउंट किया है, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट 8,000। D Limited is cancelling the forward contract. Cancellation of original forward contract. तो यहाँ पे डी लिमिटेड, एंड यू कैन सी दैट द डी लिमिटेड का ये ट्रांजैक्शन था, किसका, एक्सपोर्ट का। सो कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, उस पर हमने क्या किया, सेल डॉलर किया, तो हम लोग सेल डॉलर लिखेंगे, अमाउंट क्या होगा, 10,000। चलो, ट्राई टू कंप्लीट द रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस ऑन योर ओन, फिर मैं करके देता हूँ। उसके बाद लिखा है कैंसिलेशन ऑफ डीडी, the first transaction of remittance by, that is of A, the B Limited is imported goods, and for that the forward contract is entered upon, that is B. Then C ने export किया goods, then D Limited has again exported goods and it is going to receive the consideration in afterwards, there is D. Then fifth transaction is a student from India wants to go to USA. अच्छा, तो fifth transaction है DD issued. That is what we understand. तो इसमें हमने क्या किया, हमने किया सेल डॉलर, that is 2,000। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि डीडी हम लोग अभी हमारे स्टूडेंट, दैट इज वो हमारा क्लाइंट यानी स्टूडेंट को देंगे, उसके बाद क्या करेगा, वो स्टूडेंट अपने यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में वो जमा करवाएगा, उनकी कॉलेज का जो बैंक होगा उसमें वो डीडी जमा होगा, वो लोग फिर हमारी बैंक के पास आएंगे और फिर हमारे बैंक से पैसा जाएगा। तो जब डीडी इश्यू होगा ना, उस वक्त सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन में उसका इफेक्ट आएगा। सो इट इज डिमांड ड्राफ्ट इश्यूड। उसके बाद ई लिमिटेड ने गुड्स एक्सपोर्ट किया है और बिल्स रिसीवेबल हमने डिस्काउंट किया। Friends, I forgot to mention the D transaction. ये ट्रांजैक्शन लिखना मैं भूल गया हूँ, मैं ये ट्रांजैक्शन लिख देता हूँ। एक्सपोर्ट में
we are going to purchase dollar. So वहां पे मैं लिख रहा हूँ रिसीप्ट डी लिमिटेड का. In that we are going to buy dollar. That is 10,000. फिर ये डी का हो गया ट्रांजैक्शन. That is just 2,000. उसके बाद बिल्स रिसीवेबल हमने डिस्काउंट किया, उसका ट्रांजैक्शन मैं यहाँ पे लिख दिया. दैट इज ऑफ ई लिमिटेड. फिर कैंसलेशन ऑफ द ओरिजिनल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. डी लिमिटेड का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया. तो कैंसलेशन करने के लिए क्या किया हमने, सामने ऑपोजिट ट्रांजैक्शन लिखा है. दैट इज दिस. उसके बाद डी कैंसिल हो गया. सो डिमांड ड्राफ्ट कैंसल. स्टूडेंट का एडमिशन शायद नहीं हुआ होगा, इसलिए उसको यहाँ पे ऑपोजिट से लिखेंगे. दैट इज 2,000. दैट इज परचेज डॉलर, हमारा ट्रांजैक्शन, इसलिए परचेज के कॉलम में आएगा. एंड वी अंडरस्टैंड दैट्स ऑफ कोर्स उसका इफेक्ट अब तक नॉस्ट्रो अकाउंट में गया ही नहीं था. सो देयर इज नो क्वेश्चन कि ये डीडी जब कैंसिल होगा तो उसका इफेक्ट नॉस्ट्रो अकाउंट में आएगा. सिमिलरली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब हमने कैंसिल किया तो ऑफ कोर्स उसका इफेक्ट एक्सचेंज पोजीशन में ही हमने डाला था, तो उसका इफेक्ट एक्सचेंज पोजीशन में ही लिखेंगे, न कि नॉस्ट्रो अकाउंट में. लेट अस रीड फर्दर. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, द बैंक वांट्स टू कीप द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 85,000. तो I request all of you to write down answer along with me. ये बैलेंस कितना है, 1,05,000 माइनस 25,000. सो अभी का क्रेडिट बैलेंस कितना है, 80,000. और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमको बैलेंस कितना रखना है, 85,000. तो हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस 5,000 से बढ़ाने के लिए हमको डॉलर करेंसी बाय करना पड़ेगा. तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज क्रेडिट बैलेंस to $85,000, comma, the company will purchase $5,000 in spot. क्यों, क्योंकि अभी का बैलेंस क्या है, 80,000 है. सो 80 to 85 के लिए क्या करना पड़ेगा, वी आर रिक्वायर्ड टू परचेज डॉलर करेंसी इन स्पॉट ट्रांजैक्शन बाय 5,000, यानी हमारा क्रेडिट बैलेंस 5,000 से बढ़ेगा. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. नाउ एक्सचेंज पोजीशन देख लेते हैं. देखो एक्सचेंज पोजीशन में क्या है वो देख लेते हैं. लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन स्पीक्स लाइक दिस, the company wants to keep overbought position of $1,00,000. तुमको क्या करना है, ओवरबॉट पोजीशन रखना है. कितने का, $1,00,000 का. सो अभी का सिचुएशन क्या है वो क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं.
looking to the transactions. I request all of you to use your calculator. 1 lakh plus 5,000 plus 10,000 plus 8,000 plus 2,000 minus 25,000 minus 7,000 minus 10,000 minus 2,000, यानी अभी का ओवरबॉट पोजीशन कितना है 81,000. परचेज इज मोर देन सेल, इसलिए ओवरबॉट पोजीशन कितना है अभी 81,000. उसके अलावा जैसे कि अभी हमने यहाँ पे लिखा है डेट से हमने 5,000 का और परचेज किया है आफ्टर एंटरिंग इनटू about transaction comma overbought position will be $86,000. सर 86,000 कैसे आया? $81,000 प्लस $5,000. अच्छा, हमको चाहिए कितना? क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है हमको चाहिए 1 लाख. तो हमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसकी वजह से एक्सचेंज पोजीशन में इंक्रीज हो. 1 लाख माइनस 86,000, यानी वो 14,000 से बढ़े पर हमारा नॉस्ट्रो अकाउंट अनअफेक्टेड रहे. क्यों? क्योंकि हमको नॉस्ट्रो अकाउंट बढ़ाना नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग फॉरवर्ड में 14,000 खरीदेंगे, क्योंकि अगर हमने फॉरवर्ड में खरीदा तो उसका इफेक्ट क्या होगा? सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन में, उसका इफेक्ट नॉस्ट्रो अकाउंट में होगा नहीं. सो राइट एन आंसर. इन ऑर्डर टू keep overbought position $1 lakh, comma forward contract will be entered upon to purchase $14,000. सर ये 14,000 कहाँ से आया? 1 लाख माइनस 86,000. तो इसका टोटलिंग कर देते हैं. 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000. So it comes to 1,25,000. $25,000 plus 7,000 plus 10,000 plus 2,000. It is subtracted 25 plus 7 plus 10 plus 2, यानी 44,000 को सब्ट्रैक्ट किया 1,25,000 में से, and we get the overbought position of $81,000. ऐसा करके हमको ओवरबॉट पोजीशन या ओवर सोल्ड पोजीशन सबसे पहले फाइंड करने का है, और उसके बाद जो भी हमको ट्रांजैक्शन दैट इज बैलेंस चाहिए उस हिसाब से बैंक को क्या ट्रांजैक्शन करना है वो हम लोग नीचे लिख देंगे. यानी आपको नॉस्ट्रो अकाउंट का बैलेंस क्या चाहिए? आपको नॉस्ट्रो अकाउंट का बैलेंस चाहिए 85,000. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्पॉट में $5,000 खरीदने पड़ेंगे. उसकी वजह से आपका ओवरबॉट पोजीशन 86 हो जाएगा.
आपको रखना है 1 लाख, तो उस केस में आपको 14,000 फॉरवर्ड में परचेज करने पड़ेंगे। अगर आप फॉरवर्ड नहीं करोगे और स्पॉट पे करोगे ना फ्रेंड्स, देन इन दैट केस क्या होगा कि आपका नॉस्ट्रो अकाउंट भी इफेक्ट होगा और नॉस्ट्रो अकाउंट का बैलेंस नहीं रहेगा वो जो आपको चाहिए। दूसरा हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि ये बैलेंस जो है ना वो 80,000 है, नॉस्ट्रो अकाउंट का बैलेंस, उनको बैलेंस चाहिए 85,000 का, यानी बैलेंस उनको ज्यादा चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, परचेज किया। सपोज उनको बैलेंस चाहिए, ऐसे में बोल रहा हूँ 70,000, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 10,000 आप सेल कर दो, तो उस केस में आपका बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। दैट इज द वे यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द आंसर। और उसकी वजह से ये जो एक्सचेंज पोजीशन है उस पर भी क्या चेंज आएगा वो लिखने का पहले, और फिर हमको फाइनल ट्रांजैक्शन लिखने का। तो हमेशा पहले नॉस्ट्रो अकाउंट का एडजस्टमेंट पूरा करने का, फिर एक्सचेंज पोजीशन का। पूरा क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं, इंक्लूडिंग द थियरी दैट वी हैव डिस्कस। वी अंडरस्टैंड दैट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो कस्टमर है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोलता है कि हमको फॉरेन करेंसी में ये सारा ट्रांजैक्शंस करना है। तो वो सारे ट्रांजैक्शंस करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अमेरिका में एक अपना अकाउंट खुलवाता है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये जो अकाउंट बनाता है उसको बोला जाता है नॉस्ट्रो अकाउंट। In interbank transactions, foreign exchange is transferred from one account to another account, from one center to another center. Therefore, the banks maintain 3 types of current account in order to facilitate the quick transfer of the funds in different currencies. These accounts are Nostro, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बुक्स में जो बैंक ऑफ अमेरिका का अकाउंट है दैट इज नॉस्ट्रो, रिवर्स इज वॉस्ट्रो, एंड लॉरो अकाउंट इज कि जब भी कोई भी छोटा बैंक होता है उनका खुद का अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका में ना होते हुए वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस करते हैं उसको लॉरो अकाउंट कहा जाता है, मीनिंग आर्स, योर एंड देयर। A bank's foreign currency account maintained by a bank in a foreign country and in the home currency of that country is known as a nostro account. A bank's foreign currency account यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका में डॉलर करेंसी के अकाउंट में, फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन्ड बाय द बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन फॉरेन कंट्री दैट इज इन अमेरिका, and in the home currency of that country is known as nostro account or our account with you. For example, an Indian bank's Swiss account with bank in Switzerland. Vostro account exactly opposite, which is held by a foreign bank with a local bank. So if the Citibank maintains an account with State Bank of India, it will be a Vostro account for State Bank of India. The account which is Nostro for one bank is Vostro for another. When the domestic bank use the account of the third party, यानी एक छोटा सा बैंक जो है वो थर्ड पार्टी का इस्तेमाल कर रहा है, which holds Nostro account to settle the foreign exchange transactions, these types of transactions are included in Loro account. यानी एक जो छोटा सा बैंक है वो फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शंस को सेटल करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ट्रांजैक्शन करता है। एग्जांपल, एचडीएफसी बैंक हैज एन अकाउंट विद सिटी बैंक, यानी एचडीएफसी बड़ा बैंक है, बट आईडीबीआई डज नॉट हैव इट्स नॉस्ट्रो अकाउंट विद सिटी बैंक. आईडीबीआई हैज टू पे द बिल ऑफ इंपोर्ट मशीनरी फ्रॉम द यूएसए ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर. IDBI bank approaches to the HDFC and asks to settle the invoice on its behalf. तो आप मेरे behalf पे पेमेंट कर दो, मैं मेरे कस्टमर से पैसा लेके आपको दे दूंगा. HDFC bank worked as an intermediary between Citibank यानी वहां का बैंक and IDBI बैंक यहाँ का छोटा सा बैंक. एक्सचेंज पोजीशन जिसमें सिर्फ परचेज या सेल कितना है वही बताएंगे. It is referred to total of purchase or sale of commitment of a bank
to purchase or sell for an exchange whether actual delivery has taken place or not. यानी स्पॉट के ट्रांजैक्शंस भी आएंगे और न केवल स्पॉट के ट्रांजैक्शंस बट फॉरवर्ड के ट्रांजैक्शंस भी उसमें आएंगे. In other words, all transactions for which the bank has agreed with the counterparty are entered into exchange position on the date of the contract. Cash position, it is outstanding balance, may be debit, may be credit. In bank's nostro account, since all foreign exchange dealing of the bank are routed through nostro account, it is credited for all purchases and debited for the sale by the bank. It should, however, be noted that all the dealing, whether delivery has taken place or not, affects the exchange position, but the cash position is affected when only when actual delivery has taken place. यानी जो भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा या तो वो जो डीडी इश्यू वाला एग्जांपल था, उन सब का इफेक्ट कैश पोजीशन में नहीं आएगा और उन सब का इफेक्ट सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन में आएगा. Therefore, all transactions affecting the cash position will affect the exchange position, but not the reverse. यानी जो कैश पोजीशन में इफेक्ट होगा वो एक्सचेंज पोजीशन उसका इफेक्ट डेफिनेटली आएगा, पर जो ट्रांजैक्शंस एक्सचेंज पोजीशन में आते हैं उसका इफेक्ट कैश पोजीशन में अभी आ भी सकता है या तो फिर वो बाद में आएगा. जैसे बिल डिस्काउंटिंग था वो भी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स था वो भी. Now one by one transactions का भी एक समरी ले लेते हैं. A Limited has imported goods from the US company. It is required to pay $25,000 spot to its supplier. यानी A Limited ने क्या किया है, गुड्स इंपोर्ट किया है, इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा सेल रुपीस एंड परचेज डॉलर. वो भी कब करना है, स्पॉट में करना है. तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ बैंक को उसका रिवर्स करना पड़ेगा. क्या करेंगे, सेल ऑफ डॉलर एंड परचेस ऑफ रुपीस. तो देखो यहाँ पे इसलिए हमने लिखा है सेल डॉलर कितना आएगा फ्रेंड्स, 25,000. और यहाँ पे क्या होगा, उतना अमाउंट हमारे अकाउंट से दैट इज से डेबिट हो जाएगा. हम लोग क्या करेंगे, ए लिमिटेड के सप्लायर के अकाउंट में $25,000 ट्रांसफर करेंगे. सेकेंड में क्या लिखा है, बी लिमिटेड हैज अगेन इंपोर्टेड गुड्स. इट इज रिक्वायर्ड टू पे 7,000 आफ्टर 3 months. देखो ये फॉरवर्ड है तो ट्रांजैक्शन तो सेम ही आएगा, कॉपी पेस्ट, कोई चेंज नहीं है, बट ये फॉरवर्ड होने की वजह से सिर्फ यहीं पे उसका इफेक्ट आएगा, एक्सचेंज पोजीशन उसका इफेक्ट आएगा नहीं. सी लिमिटेड ने गुड्स एक्सपोर्ट किया है, $5,000 स्पॉट में मिलने वाले, तो एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ द अबाउट टू क्या होगा, बैंक के लिए बैंक को डॉलर मिलने वाला है, सो सेल रुपीज एंड परचेज डॉलर. स्पॉट में उसका इफेक्ट अभी तुरंत ही आ जाएगा, that is an amount of $5,000. That is what we understand. D उसमें सेम ही चीज है, कुछ अलग नहीं है, सेल रुपीज एंड परचेज डॉलर, पर ये फॉरवर्ड में है इसलिए उसका इफेक्ट सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन में आएगा. That is an amount of 10,000. उसके बाद स्टूडेंट को डीडी निकलवाना है, तो उन्होंने क्या बोला, ये रुपीस लो, मुझे डॉलर करेंसी पे डीडी निकाल के दो. हमने बोला ठीक है. उन्होंने हमको रुपीस दिया तो हमने रुपीस बाय किया और डॉलर करेंसी सेल किया. उसको डीडी निकाल के दिया है पर वो डीडी अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, इसलिए उसका इफेक्ट एक ही जगह पे आएगा, दैट इज डीडी इश्यूड 2,000. उसके बाद ई लिमिटेड हैज एक्सपोर्टेड गुड्स और उन्होंने बिल डिस्काउंट किया. तो उन्होंने क्या किया, उनके पास बिल्स रिसीवेबल है, उन्होंने हमारे पास आके बोला कि भी हमको इसका दैट इज रुपी करेंसी में वैल्यू दे दो आपका ब्याज काट के. यानी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको रुपीस देना पड़ेगा और हमको बाद में जाके डॉलर मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, ये जब बिल मैच्योर होगा तभी मिलेगा. तो सेल रुपीस एंड परचेज डॉलर, इसलिए हमने डॉलर करेंसी परचेज किया है, कितने का, 8,000 का. डी लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट अपना कैंसिल किया, यानी ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया. तो पहले हमने क्या किया था, पहले हमने परचेज किया था, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सेल करेंगे. तो अभी हम लोग सेल करेंगे. तो देखो ये रहा सेल का कॉन्ट्रैक्ट, उसको जाके काट नहीं सकते हम लोग, रिवर्स ट्रांजैक्शन करेंगे.
स्टूडेंट वांट्स टू कैंसिल द डीडी, अगेन उसको हमने सामने लिख दिया। पहले हमने क्या किया था, डॉलर को सेल किया था, अभी डॉलर बाय करेंगे। बैंक को क्रेडिट बैलेंस रखना है 85,000 का, तो अभी बैलेंस कितना है 80 है। 85 के लिए क्या करेंगे, $5,000 खरीदेंगे, कहाँ पे, स्पॉट में, तो बैलेंस 85 हो जाएगा। बैंक वांट्स टू कीप ओवरबॉट पोजीशन ऑफ 1 लाख, अभी का ओवरबॉट कितना है, अभी का ओवरबॉट है 81,000, और 5,000 खरीदने की वजह से ये 5,000, ये बैलेंस क्या हो जाएगा 86,000 हो जाएगा। हमको रखने का कितना है, 1 लाख रखने का है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 14,000 वापस खरीदेंगे, पर 14,000 हम लोग स्पॉट में नहीं खरीदेंगे, फॉरवर्ड में खरीदेंगे, कि जिसकी वजह से सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन उसका इफेक्ट आएगा, न कि कैश पोजीशन।